Gracious, loving, and living Heavenly Father, we bow down at your feet and we beg you that you please help us, lead us, and guide us this evening. We know that apart from you, we can do nothing. What do I have with me, Lord? With empty handed stand before you. We pray that, Lord, thou would fill me and the Spirit of God may lead me and guide me. Pray for dear brother Anil Khare as well. Have mercy upon our dear brother as it translates. Please have mercy upon us so that we may understand spiritual truths and we may try to apply what we have learned in your presence. And so we commit loving hands. Offer this prayer with thanksgiving. Jesus' most precious name. Amen. 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 We have already learned what are the different spiritual gifts that are mentioned in the scriptures. और हम पहले ही जो आत्मा के वरदान हैं बाइबल में उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। Today we will see how to recognize my spiritual gifts. और आज हम अध्ययन करेंगे कि हम अपने आध्यात्मिक वरदानों को कैसे पहचान सकते हैं। Every believer should know what spiritual gift he or she has been given by the grace of God. और हर विश्वासी को, भाई बहनों को यह मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से उन्हें कौन से वरदान मिले हैं। It is very unfortunate situation in our churches. Many people do not know what gift of the Spirit they have. और ये बहुत ही दुख की बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारे विश्वासी भाई बहनों को पता ही नहीं है कि उन्हें कौन सा आत्मिक वरदान मिला है। We have already seen in the days past that every believer is involved in building the kingdom of God. और हमने पिछले दिनों से वचन अध्ययन कर रहे हैं, उसमें हमने सीखा था कि परमेश्वर के राज्य के निर्माण में हर विश्वासी का योगदान है और उनमें सेवा जरूरी है। Every believer has been blessed with some gift or the other so that he may bring edification to the local church. और हर विश्वासी को या तो फिर एक से ज्यादा वरदान दिए गए हैं ताकि वो अपनी स्थानीय कलीसिया की उन्नति कर सकें, उसे बढ़ा सकें। We have already seen that the Spirit of God dwells in us so that we may be his living witnesses wherever the Lord kept us. और हम जानते हैं, पिछले दिनों हमने पढ़ा था कि जो परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में है, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में, उसके द्वारा हम परमेश्वर के गवाह बनते हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार बहुत सारे स्थानों में। The Spirit of God who is dwelling in us will give us capacity, strength to live a life which pleases our God who called us by his grace. और परमेश्वर पिता जो हमको बड़े अनुग्रह से बुलाया है, उन्होंने हमें अपनी आत्मा इसलिए दी है ताकि उसके द्वारा हम इस दुनिया में जो उसकी आत्मा वास करती है उसके द्वारा हम उसे प्रकट कर सकें और उसके गुणों को हम दिखा सकें। But one thing what we have to remember is when we know which gift of the Spirit has been given to us, we will be able to serve the Lord in that particular dimension. और ये बात बहुत आवश्यक है कि अगर हमें मालूम होता है कि हम कौन से वरदान हमें मिले हैं, तो हम उन्हीं विशेष क्षेत्रों पर अपना योगदान हम बहुत स्पष्ट रीति से दे पाते हैं। If you get into a train or if you get into a bus and you have to buy a ticket, अगर आपको ट्रेन में या बस में सफर करना होता है तो उससे संबंधित आपको टिकट लेना पड़ता है। he will ask you to which place you are desiring to go. और जब हम टिकट ले लेते हैं तो हमें पूछा जाता है कि आप कौन सी जगह जाना चाहते हैं। You cannot say that give me to some place. और हम ऐसा कभी नहीं बोलते हैं कि हमको कहीं का भी आप टिकट दे दो। When you get into a bus or train, you should know where you are going. और जब हम बस या ट्रेन का टिकट लेते हैं तो हमको पता होता है कि हमें जाना कहाँ है। You cannot go and take any bus or any train, but you will make a query. You will know for sure that this train or this bus will go in a particular direction to a particular destination. And when you are sure that you are going on the way or to that destination, then only you will get into the train. और हम बस या ट्रेन में चढ़ने से पहले अच्छी रीति से पता करते हैं कि ये कौन से रास्ते से जाने वाली है और कहाँ तक पहुँचने वाली है, और उसको अच्छे से पता करके ही हम उसमें बैठने के लिए सोचते हैं। Our lives cannot be like a kati patang. और हमारी जो जिंदगी है, ये जीवन है, ये एक जो पतंग जिसकी रस्सी कट जाती है और वो कहीं भी उड़ते हुए पहुंच जाता है, ऐसी जिंदगी नहीं है।
You should be a kite which will be under control of a master. Otherwise, if it is like a kati patang, it just goes according to the stream of the flow. प्रियो, हमारा जो जीवन है वो कटी पतंग के समान नहीं होना चाहिए, परंतु जैसे पतंग को एक रस्सी नियंत्रण में रखती है, वैसे ही हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उसके विशेष वरदानों की सेवकाई में उसकी महिमा के लिए नियंत्रण में रहना है। Let me ask you a very straightforward question. मैं आपसे एक सीधा सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। Do you know which gift of the Spirit has been given to you? क्या आप बता सकते हैं कि आपको कौन सा आत्मिक वरदान मिला है? How long you have been born again? How long you have been worshiping God? How long you have been desiring to serve the Lord? और कितना समय हो गया कि आपको एक नया जन्म मिल चुका है और आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं? ये आपको कितना समय से ऐसा जीवन में इच्छा है? If you do not know what a particular gift God has given you, you do not know in which direction you go, in which way you can serve the Lord. और अगर प्रियो हमारे आपको आपके आत्मिक वरदानों को मालूम नहीं रहेगा, तो आपको कौन सी दिशा में जाना है, कैसी सेवा करना है, ये पता नहीं चल पाएगा। We have already seen earlier that the spiritual gift will be given to every person so that he may be able to serve the Lord in that particular capacity. और हमने पहले भी पढ़ा था कि हर विश्वासी को एक विशेष ये वरदान मिला है, और वो इस विशेष वरदान के द्वारा उसको एक क्षमता मिलती है, सामर्थ्य मिलती है, और उसी सामर्थ्य के दायरे पर वो विश्वासी सेवा कर सकता है। God has given me the gift of teaching. जैसे परमेश्वर ने मुझे उपदेश करने का या सिखाने का वरदान दिया है। Because God has given me the gift of teaching, I'm able to deliver the message which God has kept in my heart. और परमेश्वर ने जैसा मुझे उपदेशक और शिक्षक बनाया है, तो उसके उस वरदान के द्वारा परमेश्वर मेरे हृदय में जो बातें सिखाते हैं, उसको मैं दूसरों को सिखा पाता हूँ, समझा पाता हूँ। We have already seen about the gift of teaching. What does a teacher do? और हमने पहले भी देखा था कि एक शिक्षक को कैसा वरदान होता है और शिक्षक किस प्रकार लोगों को सिखाता है। A teacher will make a complicated truth into simple terms. He says that 1, 2, 3, and he will see to it that his audience or the spectators will be able to receive that truth in a very, very simple fashion. और हमने देखा था कि जो शिक्षक का गुण होता है, वो इस प्रकार का गुण होता है कि वो कठिन विषय को बड़ी सरलता से लोगों तक पहुंचाता है, और उनको 1, 2, 3 भाग में बांटकर बड़ी आसानी से उनको समझने के लिए, उनके श्रोताओं के हृदय तक पहुंचने के लिए वो उसे बता पाता है। We have already seen that music and singing, they don't share the part of gift of the Spirit. जैसा कि मैंने बताया था कि जो आराधना है और जो हम संगीत No, गाते no, हैं, no, no, no. Singing and music, they don't share the part of the spiritual gift. They are natural gifts. और जो एक गीत गाना होता है और वाद्य यंत्र को बजाना होता है, वो एक साधारण वरदान है, वो आत्मा का विशेष वरदान नहीं है। There are brilliant people on the face of the earth who can sing very well and who can play music very well. और इस धरती पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे से बजाना भी जानते हैं और गीत गाना भी जानते हैं। We have already made into two categories. One is talents and the other is spiritual gifts. और जैसे कि हम उसको 2 भाग में बांट सकते हैं, एक हुनर होता है और दूसरा आत्मिक वरदान होता है। Talents, they are the natural gifts come from the physical birth. और जो हुनर होता है, वो एक व्यक्ति को शारीरिक रूप से मिला हुआ एक उसका व्यक्तिगत गुण होता है। The spiritual gifts are the gifts, they come because of the spiritually reborn again experience. और जो आत्मिक वरदान होता है, वो आत्मिक रूप से दोबारा जन्म पाने के कारण, नए सिरे से जन्म लेने के कारण, आत्मा की वजह से उन्हें वो वरदान मिलता है। A person who is born again, he will use both natural gifts and spiritual gifts for the glory of God. और परमेश्वर की महिमा के लिए अगर एक व्यक्ति नया जन्म पाया है, तो वो अपने शारीरिक वरदानों को भी और नया जन्म का आत्मिक वरदानों को, दोनों को परमेश्वर के महिमा के लिए उपयोग करता है। In the cinema field, we find so many gifted people who can sing well, who can play music well. Do we say that they have received spiritual gifts? Absolutely not.
और हम देखते हैं कि सिनेमा में जिसमें बहुत अच्छे लोग गाते हैं और बहुत अच्छा बजाते हैं, ऐसे लोग हैं, लेकिन हम कभी भी ऐसे लोगों को आत्मिक वरदान पाए हुए लोग नहीं बोलते हैं। So let me tell you once again, spiritual gifts are meant so that people, those who are not born again, will be born again. And secondly, those who are born again, they will grow to be like Christ spiritually, become matured day after day. और हम देखते हैं प्रियो कि जो नया जन्म पाने के बाद आत्मिक वरदान को पाते हैं, वो उस आत्मिक वरदान के द्वारा परमेश्वर की सेवा करते हैं। और दूसरी बात, उस आत्मिक वरदान के द्वारा खुद उनके जीवन की उन्नति होते जाती है, जिससे वो प्रभु में बढ़ पाते हैं। The spiritual gifts will give us capacity or strength that will enable to build the kingdom of God, edify the church, and brings glory and honor to God. और जो भी आत्मिक वरदान है, वो एक प्रकार की क्षमता और सामर्थ होती है, जिसके द्वारा परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी होती है और हम परमेश्वर को महिमा और आदर दे पाते हैं कलीसिया की बढ़ोतरी के द्वारा। How to recognize my spiritual gifts? और मेरा आध्यात्मिक वरदानों को मैं कैसे पहचान सकता हूँ? Number one, study the God's word and know about spiritual gifts. और सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें और आत्मिक वरदानों के बारे में जान सकते हैं। फिर The Bible categorically explains what are the spiritual gifts gifted to the people of God so that church may be edified and God be glorified. और हम जब परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो बाइबल में बहुत सारे आत्मिक वरदानों को विभाग में बांटा गया है अलग अलग, जिसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है और कलीसिया की उन्नति होती है। We have studied this in 3 classes, almost 4.5 hours we have studied what are all these spiritual gifts mentioned in the Bible categorically. और हमने अलग अलग भागों में लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा कौन कौन से आत्मिक वरदान होते हैं उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। If you do not know what is recorded in the Bible about spiritual gifts, you will be never be able to know what's the gift given to you. और जब तक हम बाइबल में लिखे हुए विभिन्न प्रकार के आत्मिक वरदानों के भागों को नहीं जानेंगे, तो हमें भी पता नहीं चल पाएगा कभी कि कौन सा आत्मिक वरदान हमारे जीवन में है। This is the first condition. और ये पहली एक विशेष परिस्थिति है कि You should हमें, you should know the scriptures very well. और ये पहली जरूरी बात है कि हमको वचन का अध्ययन और वचन का ज्ञान होना चाहिए कि उसमें कौन से वरदान बताए गए हैं। If you do not remember, you please go back the recorded messages and please see that you know categorically what are all the different gifts of the spirits mentioned in the scripture. और अगर अभी आपको वो वरदानों के बारे में अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप जो पिछले जो अध्ययन में बताया गया है उसको निकाल कर आप उन विभिन्न वरदानों के विभागों को आप एक बार अध्ययन कीजिए। Secondly, दूसरी बात, observe how others exercise the spiritual gifts given to them. और दूसरा बात ये है कि हम देखें कि कैसे अन्य लोग आत्मिक वरदानों का प्रयोग करते हैं। Now I am exercising the spiritual gift of teaching given to me. When you observe me, you know how I am exercising the spiritual gift of teaching given to me. और जैसे कि वर कुमार अंकल को एक शिक्षक का वरदान है, तो जब हम वर कुमार अंकल को उदाहरण के रूप में देखते हैं कि वो कैसे सिखाते हैं, तो हमको पता चल पाता है कि उनके अंदर एक शिक्षक का आत्मिक वरदान कैसे काम करता है। So we need to closely watch the senior believers, senior servants of God, how they are exercising their spiritual gifts. और इसीलिए प्रियो हमको हमारे जो अगुवे दास होते हैं, जो सीनियर हैं, जो प्राचीन हैं, जिनके जीवन में वरदान काम करता है, उनको देखकर हम इसको अध्ययन कर सकते हैं कि आत्मिक वरदान कैसे प्रयोग करते हैं। You please request them to give some time, go and sit with them, discuss with them, try to understand how they exercise this spiritual gifts. और हम उनसे समय लेना है, जो हमारे अगुवे होते हैं, बहुत जो विभिन्न पास्टर होते हैं प्राचीन, और उनके साथ समय मांगकर हम उनको अध्ययन करना है और उनसे पूछना है कि आप आत्मिक वरदानों को प्रयोग कैसे करते हैं, उनका अभ्यास कैसे करते हैं। Number 3, तीसरी बात, when God
gives you a gift, and he will also open doors to exercise those spiritual gifts. और तीसरा परिस्थिति वो होता है जिसमें परमेश्वर आपको आत्मिक वरदानों को उपयोग करने के लिए आपके लिए द्वार खोलता है और वो आपको अवसर देता है कि आप उन वरदानों को उपयोग कर सकें। This is the responsibility of the church leaders. What church leaders will do? Church leaders will observe the congregation, the members of the church very closely, and they will be inspired to encourage them. Brother, why don't you do this? Sister, why don't you do this? There is a responsibility of the church leaders to encourage local believers as they observe by the Spirit of God what kind of gift is given to them. और जो एक कलीसिया के अगुवे होते हैं वे ध्यान से अपनी कलीसिया के भाई बहनों के जीवन को देखना है और उनको उत्साहित करना है और उनके वरदानों को पहचानने के लिए उनको मदद करना है और उनको बताना है अध्ययन करके उनका विश्लेषण करके कि आपके अंदर ये वरदान है और उनको सेवा करने के लिए उत्साहित करना है। Unfortunately, these days we see very, very discouraging situations in the local churches. और आजकल की कलीसियाओं में हम बहुत ही निराशाजनक स्थितियों को देखते हैं सभी जगह। There is only one leader, everything is done by him. He will not encourage any other person, he will not prepare the next generation. He will start, he will close, he will sing, he will give the word, A to Z he does. He does not encourage any other. Very, very sad situation. और हम बहुत ही एक निराशाजनक अवस्था को देखते हैं कि एक कलीसिया में आज हम केवल एक ही व्यक्ति को अगुवे के रूप में देखते हैं। केवल वही आराधना शुरू करते हैं, वही आराधना खत्म करते हैं, वही प्रचार करते हैं और वही सारी सेवकाइयों को समाप्त कर देते हैं और किसी को भी वो उत्साहित नहीं करते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए अगली पीढ़ी को तैयार भी नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही एक निराशाजनक स्थिति है। Unfortunately, in many churches, people just come, give the offertory, and then go. For years together, they do nothing. Just come and go because leaders don't encourage them. Very, very unfortunate thing, which is unbiblical, which is not correct. और ये बात बिल्कुल भी बाइबल से अलग है प्रियो। बाइबल में ऐसा नहीं दिया गया जैसा आजकल चल रहा है कि लोग सालों साल से आराधना आ रहे हैं और जा रहे हैं, आते हैं और चले जाते हैं, केवल दान देते हैं और चले जाते हैं और इस प्रकार की दशा आज कलीसिया में है जो बहुत ही निराशाजनक है। Let me give an example. You are a father or you are a mother. God gave you 2 children. How you bring them up? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। मान लीजिए आप एक माता पिता हैं और आपके पास 2 बच्चे हैं, तो आप उनको कैसे बढ़ाएंगे? You will see your son, maybe 6 years old, maybe 10 years old, but you prepare him to be a man. You train that person to be young person to live independently. और हमारे बच्चे जैसे हमारे बेटे होंगे, कोई 6 साल के, कोई 9 साल के, तो हम उनको सिखाएंगे कि बड़े होने के बाद उनको कैसे आत्मनिर्भर बनना है और एक जो वयस्क पुरुष कैसे रहता है, ऐसे जीने का उसको हम प्रशिक्षण देंगे। Why? I'll give my own personal example. और मैं आपको अपना उदाहरण बताता हूँ। I have trained my son when there was no what is called the modern technology exploited like this. और मैंने अपने बेटे को सब चीजें सिखाई थी जब ये विभिन्न प्रकार के आधुनिक जो ये साधन नहीं बने थे उसके बारे में मैंने उन्हें बताया। I don't know how many of you can catch what I'm saying. When there was no Pentium, it was only 836 and 436, 386 and 486, and then 586 has become Pentium. IC, I'm talking about IC. 80586 is Pentium, but I purchased 4081 PC second hand, and I dismantled all the PC into parts. In my house, I put a whiteboard. I taught my son Joy, about computers and the basics of the computers. और मैंने विभिन्न प्रकार के जो कंप्यूटर होते हैं उसके आधुनिक पार्ट्स को अलग अलग रूप से जमा करके मैंने अपने बेटे को उसके बारे में विशेष सिखाया है। Now he has become a very big man in IT company. Then he tells me, Dad, why do you all that? Then he tells me the shortcuts.
so fast, so latest. I myself don't understand. और आज जो वो बेटा है आईटी कंपनी में एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है, और वो मुझको कई बार कंप्यूटर में आज शॉर्टकट और कुछ तरीके सिखाते हैं जो मुझे नहीं आता है आज। He recruits IITians and IIMs. He has become a big man. But I taught him basics. What I mean to say, when I see my son growing, I rejoice when I look at my son, saying that, oh, he has become a better person than me. और मैंने उनको बहुत छोटा सा कंप्यूटर का विषय सिखाया था, लेकिन बाद में वो आईटी करके एनआईटी करके जो एम्स करके बड़े अधिकारी बन गए हैं। तो मुझे देखकर बहुत खुशी हो रही है कि कैसे मेरा जो बेटा है वो बहुत उन्नति की ओर आगे चला गया है। A church leader is like a father to all the congregation with whom you worship, with whom you serve. और एक जो अगुवा होता है वास्तव में एक पिता के समान होता है। जिस भीड़ के साथ वो आराधना कर रहा है, वो जो लोग होते हैं उनके पिता के समान वो उनको ख्याल रखना है। You have to train up your members of your congregation to be better than you. और हमें अपनी जो झुंड परमेश्वर ने दिया है उसको ऐसा बनाना है कि वो हमसे भी बेहतर बन सके। You have to provide opportunities to the people of your congregation so that they may exercise the spiritual gifts and they may grow better and better than you. और हमें जो अपनी झुंड में जो लोग हैं उनको अवसर देना है, और ज्यादा से ज्यादा उनको अवसर देंगे तो उनके अंदर का जो वरदान है वो निखरेगा और वो बढ़ते जाएंगे, और ऐसा उन्हें बनाना है कि वो हमसे भी बेहतर बन सके। I remember I have trained few people, those who are looking at me as a leader. I have trained them. Now I saw them doing much better than me. I take rejoice in the Lord. I praise God for that. और मैं परमेश्वर की महिमा करता हूँ जब मैं अपने तैयार किए हुए कुछ लोगों को अगुओं को देखता हूँ। जिन दो लोगों को मैंने तैयार किया है आज वो मुझसे भी आगे जाकर बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। इससे मुझे बहुत आनंद मिलता है जब वो प्रभु में बढ़ रहे हैं। Accept invitation to exercise your spiritual gifts. और इसलिए प्रियो हमको क्या करना है, अपने आध्यात्मिक वरदानों का प्रयोग करने के लिए जो परमेश्वर ने द्वार खोला है उसको स्वीकार करना है। Please remember, when God gives you work, He will give tools and resources along with the work. और ये बात सही है प्रियो कि जब भी परमेश्वर हमको कोई काम देते हैं तो उसके साथ साधन भी मुहैया कराते हैं और हमें औजारों को देते हैं ताकि वो काम हम कर सके। Sometimes people closes the door, but God opens the door. और बहुत बार हम देखते हैं कि लोग द्वार को बंद कर देते हैं लेकिन परमेश्वर द्वार खोलता है। But it is also equally true that we should recognize that we are unworthy to serve the Lord. But still, when we get the invitation, we graciously accept the invitation, but we should not reject the invitation. और ये बात भी सही है कि हम परमेश्वर की दृष्टि में अयोग्य व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के अनुग्रह के कारण हमको उनका जो प्रस्ताव होता है, जो आत्मिक वरदान का जो द्वार वो खोलते हैं, उसको हमें अनुग्रह के कारण स्वीकार करना चाहिए, उसमें बढ़ना चाहिए। Please remember two things very carefully. One side, God is sovereign. The other side, humans are responsible. और हमने बताया था इस बात को हमेशा जानना है कि एक तरफ तो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सार्वभौमिक है, लेकिन दूसरी तरफ मानव की कुछ जिम्मेदारियां भी है। Yes, God uses people. God needs people. But doesn't mean to say that we don't help God. But it's a privilege, awesome privilege to serve this living God. And we are greatly privileged to serve the God in the given situation. और ये बात जरूर ये बात सही है कि परमेश्वर हमको अवसर देते हैं सेवा करने का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम परमेश्वर की मदद करते हैं, परंतु ये परमेश्वर की एक दया है, उसकी एक प्रेम है कि वो हम हमारे द्वारा वो कुछ कार्य को करना चाहते हैं। It is God who gives us the invitation, not people. और ये कोई लोग नहीं है प्रियो जो हमें सेवा के लिए बुलाते हैं, परंतु ये परमेश्वर है जो हमें आमंत्रण करते हैं और हमारे लिए द्वार खोलते हैं सेवा करने का। But again, God gives that invitation through the people only. Ultimately, through the people. Not angels won't come from heaven. God definitely invites you through your superiors, maybe whom you know. Sometimes out of the blue, somebody comes up and say that, brother, why don't you please help this? Why don't you please do this? और ऐसा ऐसा होता है प्रियो कि परमेश्वर हमको कुछ लोगों के द्वारा ही आमंत्रण करते हैं, और हमारे लिए जो द्वार खोलता है वो परमेश्वर कुछ लोगों को माध्यम बनाता है। वो हमारे अगुवे भी हो सकते हैं,
हमारे सीनियर भी हो सकते हैं, इवन हम जिन्हें नहीं जानते वो भी हो सकते हैं, जो हमें बताते हैं कि आपके पास कुछ विशेष वरदान है, बुलाहट है, आप उसको उपयोग कीजिए। But you have to wait patiently till God gives you opportunity. और परंतु हमें बड़े धीरज के साथ उस समय का इंतजार करना पड़ेगा प्रियो, कि जब तक हमें परमेश्वर उपयोग करना ना चाहे। Never use your influence, never intrude, never force, but patiently wait God given times. और परमेश्वर के दिए हुए समय का हमें इंतजार करना है, ना कि हमारी ज्यादा इच्छा की वजह से और हमारे अंदर की ज्यादा भावनाओं की वजह से हम ऐसे सेवा करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं है, परंतु हमें परमेश्वर के दिए हुए समय का इंतजार करना चाहिए धीरज के साथ। It is God, our master, who recruits us what we should do, where we should do. We only take the help of the Spirit how we should do. और परमेश्वर है प्रियो जो हमें चुनाव करता है, हमें विशेष किसी कार्य के लिए नियुक्त करता है, तो हमको वो कब करना है और कैसे करना है उसको हम परमेश्वर से पूछकर, परमेश्वर की आत्मा की सहायता से उसे कैसे करना है वो पवित्र आत्मा से सीख के करना है। We don't choose what I should do or what we should do. It's God's choice. It's God who chooses. It's God who calls. It's God who provides the opportunity to serve Him. और हम ऐसा नहीं कहना है प्रियो कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा होना चाहिए और परमेश्वर की ओर से अगुवाई होना चाहिए कि हमें इस प्रकार की सेवा करनी है। And accept the invitation to exercise your spiritual gift with humility. और इसीलिए अपने आत्मिक वरदानों को प्रयोग करने के लिए जो परमेश्वर ने हमको आमंत्रण दिया है, जो हमारे लिए द्वार खोला है, उसको बहुत नम्रता से स्वीकार करना चाहिए। Even never for a minute say that only I can do, nobody can do, nobody can do like me. Never say that kind of language. और कभी भी हम थोड़े से समय के लिए भी, एक मिनट के लिए भी कभी इस प्रकार घमंड से नहीं बोलना कि ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, ये काम केवल मैं ही कर सकता हूँ। ऐसे हम घमंड के साथ कभी नहीं काम करना। Always with humility and with simplicity, accept the invitation. Just do what you can and then get out. That's it. Nothing more, nothing less. और हम परमेश्वर का दिया हुए वरदान को बड़ी नम्रता से और एक बहुत साधारण, एक सरल व्यक्ति के रूप में हमें उसे करना है, और उस सेवा करने के बाद वहां से हम चले जाना है। Yeah. Never think that you are somebody and so God has given you. No, no, no. There are many people who are better than us, but still God chose you and me to serve Him in this particular dimension. So, with humility, with gratefulness of heart, we say, thank you, Lord, for giving me this opportunity. And with that spirit, we need to serve the Lord. और मैं तो कुछ विशेष प्रकार का व्यक्तित्व रखता हूँ और मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए प्रभु ने मुझे ये सेवा और वरदान दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। इस धरती में हमसे भी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ये तो परमेश्वर की दया और अनुग्रह है कि परमेश्वर ने हमें उस मौका दिया है, इसलिए हम उस परमेश्वर का आदर करना चाहिए और बड़ी नम्रता के साथ में उस वरदानों की सेवा के लिए हमको सेवा करना चाहिए। And fourthly, you love to work on your spiritual gifts more and more. और चौथी बात है कि आप अपने जो आध्यात्मिक वरदानों पर अधिक से अधिक काम करना पसंद करना चाहिए, उसमें आपको काम करने से अच्छा लगना चाहिए। You must have been watching me at least for more than 7 to 8 months, how I work hard to deliver the messages God has given me to you. How I work hard, you know it, you have seen it. और पिछले 7-8 महीनों से जबकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने देखा होगा कि कैसी मैं मेहनत करता हूँ इस अध्ययन के प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, और किस प्रकार मैं इसमें लगन से लगे रहता हूँ, क्योंकि ये मुझे ये पसंद है ये सब। I sit hours together to make PPTs. I sit hours together to translate from Telugu to English and English to Hindi, and then to give a nice presentation. और घंटों घंटों मैं बैठकर इसको मेहनत करता हूँ, और पहले इसको जो तेलुगु से इसको हिंदी इंग्लिश में, फिर उसके बाद इंग्लिश से इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ, और बहुत सुंदर रीति से मैं एक प्रेजेंटेशन को तैयार करता हूँ, क्योंकि मुझे ये काम करना पसंद है। Whatever gift God has given you, you have to work hard for it. और जो भी परमेश्वर ने आपको वरदान दिया है उसके लिए आपको एक कठिन परिश्रम करना चाहिए। Unfortunately, there is a myth saying that God will take care of everything, God will do everything. No, no, no. God will not do everything. God will work with you. God will give you grace to work hard. You have to work it.
Just because I'm called to be a teacher, when I just stand in the presence of God, things won't come automatically. I have to work on, I have to study the scriptures, I have to compare the scriptures, I sit with the concordance, I have to sit with the with the study Bibles, I have to sit with the commentaries, I have to refer handbooks and so many other resource material. I have to sit, work hard, I have to map them, I have to put them in proper order, and then come and present before you. और परमेश्वर परमेश्वर सब कार्य करने में सामर्थी है, ऐसा बोल के हम चुपचाप नहीं रहना है, खड़े नहीं रहना है, परंतु हम मेहनत करना है, परिश्रम करना है, परमेश्वर के दिए हुए वरदानों को प्रयोग करने के लिए वचन का अध्ययन करना है और विशेष तरीके से प्रभु की उपस्थिति में बैठकर अपने को उपयोग करने के लिए परमेश्वर को देना है, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर सके। These days, very unfortunate situation in the local churches. The man of God stands, he has nothing to say, only keep on playing the same old records, same old messages, repeatedly telling the same statements. There is nothing new and there is absolutely no message. People are not blessed. Very, very unfortunate situation. और आजकल की दशा में हम देखते हैं प्रियो कि लोग आशीषित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सिखाने वाला व्यक्ति खड़े होकर वही वही बातें फिर से वही वही बातें बहुत समय से बोल रहे हैं, उसमें कुछ भी नई बातें नहीं है, लोगों को सिखाने वाली बातें नहीं है, इसलिए लोग वही के वही हैं और वो केवल एक ही बातें सीख रहे हैं। Please remember, God has trusted us. God has given us this great, amazing responsibility to stand before the people and present on behalf of God. We need to be properly equipped. We need to work hard and we need to properly hand over what God has given to us. और परमेश्वर ने हमें योग्य जानकर जो जिम्मेदारी दिया है उसके लिए हमें परिश्रम करना है, और जो भी परमेश्वर ने वरदान दिया है उसके लिए परिश्रम करके उसे लोगों के सामने प्रस्तुत करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। In other way, we need to bless the people. और दूसरे रूप में कह सकते हैं कि हमारे द्वारा लोग आशीषित होना है, We need to build the people. हमें लोगों का निर्माण करना है We need to answer their questions. और हमें लोगों के सवालों का जवाब देना है। People come to the churches with many questions in their mind. We need to answer them. और जब कलीसिया में हमारे विश्वासी भाई बहन आते हैं तो बहुत सारे सवालों को लेकर आते हैं। People will have so many struggles in their life. They don't know how to handle their life. As servants of God, here we are, take the word of God and hand over the people of God so that they may be equipped, they may build their lives, they may handle their struggles, and they may come out of all their problems because they get the solution from the word of God. और बहुत सारे कलीसिया में जो लोग आते हैं वो बहुत सारे संघर्ष में रहते हैं, परेशानी में रहते हैं, समस्या लेकर आते हैं, तो हम परमेश्वर के सेवक होने के नाते उनको परमेश्वर के वचन के द्वारा उनको हल बताना है, ताकि वो अपना निर्माण कर सकें, बढ़ सकें और अपनी समस्याओं का हल कर सकें। You must love to work on your spiritual gifts more and more. That means to say that you must work hard. You must stir up the gift of God that is in you. और इसीलिए प्रियो, जो आपको वरदान मिला है उसको अधिक से अधिक उसमें उपयोग में लाना है और उसको आपको काम करना बहुत पसंद होना चाहिए, क्योंकि आप उसे जितना अधिक हिलाएंगे उतना अधिक वो बढ़ता जाएगा। Please turn with me to 2 Timothy chapter 1 and verse 6. आइए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा तीमुथियुस की किताब और उसका पहला अध्याय उसका 6वां वचन। 2 Timothy chapter 1 and verse 6. दूसरा तीमुथियुस 1:6। Yeah. I read in Hindi, uncle. Yeah. Stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। Here is with an apostolic authority, Apostle Paul is saying, Apostle Paul says that I laid my hands on you, and so you were gifted with spiritual gifts. Because of this apostolic authority is saying, now when church leaders put their hands and laying on hands will not receive any gifts. Please remember that. और ये जो पौलुस है जो एक प्रेरित है परमेश्वर का, और वो अपनी प्रेरिताई के वरदान को इस्तेमाल करने के कारण तीमुथियुस को कहता है कि मेरे हाथ रखने से तुझे वरदान मिला है, उसे तुझे चमकाना है। लेकिन कलीसिया का कोई भी व्यक्ति अगर
ऐसा हाथ रखकर वरदान देना चाहेगा तो ऐसा संभव नहीं होता है, because at that point of time they were they are under transition from Old Testament to New Testament with the apostolic authority. When he laid hands, they received. But now it won't happen because the ministry of apostolic authority is ceased. और प्रियो जब पुराना नियम से नए नियम में हम देख रहे थे कलीसिया प्रवेश कर रही थी, तो उस समय प्रेरितों के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते थे और प्रेरितों के ऐसे हाथ रखने से वरदान मिलते थे। लेकिन ये जो सेवकाई है ये उसी समय हो गया है प्रेरितों के रखने के द्वारा वरदान, लेकिन अभी ये नहीं होता कलीसिया में। What do you mean by stir up the gift of God that is in you? और जो हमको वरदान मिला है उसको प्रज्वलित करना है, इसका क्या मतलब होता है? That means it's something like coffee. There is sugar put in it. We need to stir up that coffee so that that sugar is properly melted and it gives its flavor and result. और ये जो वरदान को प्रज्वलित कर देना, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए एक उदाहरण से हम कॉफी बनाते हैं, जब तो कॉफी में हम शक्कर को डालते हैं और कॉफी और शक्कर को बहुत आपस में चम्मच से मिलाते हैं, तो वो दोनों मिलकर एक फ्लेवर बन जाता है, कॉफी बन जाता है। वैसे ही ये वरदानों को प्रज्वलित करने की बात है। So be prepared to work hard, whatever gift God has given you, so that you may stir it up to work better and better with in a very skillful manner. और ऐसे ही प्रियो जो आत्मिक वरदान हमको मिला है उसको हमको मेहनत करना है, प्रज्वलित करते जाना है, ताकि वो और उसमें हम एक अच्छे जो हुनर हुनर के साथ में स्किलफुल व्यक्ति के साथ रूप में हम वरदान की सेवा कर सकें। And fifth one, you will do your spiritual gift, you will exercise your spiritual gift skillfully well to the utmost satisfaction of our master. और पांचवी चीज है प्रियो, हमें जो आप अपने आत्मिक वरदानों को जो करेंगे वो कुशलता से, अच्छी तरह से और संतोषजनक ढंग से हमको करना है। Please remember, whatever we do it in a very orderly fashion. Don't do it casually. और जो भी हम करते हैं प्रियो उसको बहुत ही क्रम से हमें करना चाहिए, हमें उसे क्रम को तोड़कर यूं ही कभी भी नहीं करना चाहिए। Because we do it as unto God, not to the people. क्योंकि हम इसको किसी मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए करते हैं। Whatever you give to God, give the best what you can. और इसलिए जो कुछ हम परमेश्वर को देते हैं वो बहुत उत्तम होना चाहिए जो हम प्रभु को देते हैं। The best, I mean to say the best, nothing less than that. और प्रभु को हम उत्तम देना है, इसका मतलब उत्तम देना है, उत्तम से कुछ कम नहीं देना है, उत्तम ही देना है। Because it is an opportunity to serve God. You may not have the same opportunity to serve of the same people. People may change. People, the opportunity reaching the people may change. So whenever you reach a person and minister to him as if that is the last attempt. और प्रियो जब भी हमको परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, एक मौका दिया है सेवा करने का, तो हम उसको बहुत अच्छे से उत्तम तरीके से करना है, उस अवसर को बहुमूल्य समझ के, क्योंकि हो सकता है कि अगर हमने वो अवसर गंवा दिया तो उसके बाद दोबारा वो अवसर मिलते समय वो व्यक्ति बदल चुका होगा, उसके जीवन में काम नहीं होगा। So do it skillfully up to the most satisfaction of our Lord, of our Master. इसलिए प्रियो हमें अपने आत्मिक वरदानों को बहुत ही कुशलता से और संतोषजनक ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। And sixthly, while practicing your spiritual gift, others will be blessed. और छठवीं बात है कि अपने आत्मिक वरदानों का जब हम अभ्यास करते हैं तो दूसरों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। Somebody should come and tell you, brother, I'm blessed because of your ministry. Thank you. और कोई व्यक्ति हमारे पास आना है और ये बोलना चाहिए कि आपकी सेवकाई के कारण मुझको आशीष मिला है। I can tell you n number of examples from my own life. और मैं आपको बता सकता हूँ बहुत सारे उदाहरण जो मेरे जीवन में हुए हैं। Sometime past, when I was, my message presentation is over, one little lady came with 3 children and said, Uncle, did you remember me? और एक बार ऐसा हुआ जब एक बहन अपने 3 बच्चों के साथ मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि अंकल क्या आपको याद है क्या? I said, no, Amma, I'm very sorry. I did not remember. I'm sorry. Please remind me how I can recognize you. और मैंने उस बहन से कहा कि मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आप मुझे याद
करने में मदद कीजिए। That little girl said, "Uncle, I was your Sunday school teacher. That was 25 years back. You taught us lessons. I still remember." It was actually mind blowing. I don't know what I told them, but that little girl became a big married mother of 3 children. She still says that she remembered the Sunday school story what I told 25 years back. और उस बहन ने बताना शुरू किया कि 25 साल पहले संडे स्कूल में आपने मुझे शिक्षा दी थी, वो आज भी मुझे याद है। और मुझे बहुत खुशी हुई कि ये बहन इतनी बड़ी हो चुकी है, उसके 3 बच्चे हो गए हैं, लेकिन आज भी उन्हें वो 25 साल पहले का सिखाया हुआ संडे स्कूल का शिक्षा याद है। I'm just sharing my experience for your encouragement. Not that I'm something big or someone special, but the point is the feedback is very important. When you exercise the gift of God given to you, people must be blessed. और मैं आपको ये इसलिए नहीं बताया हूँ प्रियो कि मैं अपने आप को बड़ा बनाना चाहता हूँ, परंतु मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम किसी को वैसे सेवकाई करते हैं वरदानों से, तो लोग बोलना चाहिए कि हमको आशीष मिला है। People should not say, "Ah, wow, this man came, this man stood." No, 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 no. That should not be the case. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी सेवा करते समय, खड़े होते समय लोग बोलें, ओहो, अब यही व्यक्ति फिर से सेवा करने आ रहा है। ऐसा लोग निराश नहीं होना चाहिए। Sometimes, they will complain to our superior. "Don't send this man to us again. We are so vexed with this man. He has nothing to deliver. Please don't send." Was it the case with you? और कई बार ऐसा होता है कि हमारे लोग बोलते हैं कि आप उस व्यक्ति को सेवा के लिए मत भेजिए, क्योंकि उस व्यक्ति के द्वारा हमें कुछ भी आशीष नहीं मिला, बस वो एक साधारण बातें बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है। They should be telling to our senior, saying that, "We want this brother again. Please send him. We are so happy to see him. We are so happy to have him." And that's how, when people are blessed, they will want you to come again and again. और ऐसा होना चाहिए प्रियो कि लोग हमारे बारे में ऐसा बोलें कि इनके द्वारा आने से हमें आशीष मिलता है, इनको बार बार हमारे चर्च में बुलाइए, ऐसा लोग बोलना चाहिए। These days, people don't want feedback. और आज के समय में ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो प्रतिक्रिया नहीं लेते लोगों की कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। Sometimes people have something to say. "Brother, you did well, but if you make this change, you can do much better." और कई बार लोग बताते हैं कि आपने अच्छा किया, परंतु थोड़ा सा और कुछ बदलेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। Feedback is very important. और बहुत जरूरी है कि हम लोगों से उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछें। There should be somebody who is willing to correct you. और ऐसा कोई ना कोई जरूर होना चाहिए जो आपको सही करे, आपको सुधारे। If you are willing to receive corrections, yes, people will tell you. Sometimes we feel as if we are so perfect that we don't need any correction. If you don't need any correction, you will never grow in increasing or improving your skills. और हमेशा हम प्रियो सुधरने के लिए तैयार रहना है। हम कभी ऐसा नहीं सोचना है कि हम सिद्ध हो चुके हैं और हमें सब कुछ आता है। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हमारे अंदर वो कमी रह जाएगी, परंतु हम स्वीकार करना है अपनी कमियों को। और कोई हमें सिखाते हैं, फीडबैक देते हैं, तो उसे हमें स्वीकार करना है ताकि हम और बढ़ते जाएं। Please be willing to learn till you die. इसलिए हमारा जीवन में इच्छा होना चाहिए कि मरते दम तक हम सीखना बंद नहीं करेंगे। I have been serving the Lord for the past 40 years. और अंकल जी को सेवकाई करते समय लगभग 40 साल हो चुके हैं। Even a small bacha comes and tells me, "I'm willing to receive." यस अंकल। एक छोटा बच्चा आके मेरे को बताया, "Uncle, why don't you learn this? I'm willing to learn." और मुझे बहुत खुशी हुआ जब छोटे बच्चे भी आके बोलते हैं, अंकल जैसा आपने सीखा है ऐसे हमें भी सीखना है। I'm willing to learn even from the junior most person. और मुझे खुशी है कि अगर एक छोटा सा बच्चा और कोई नया जो छोटा कोई सिखाना चाहे तो भी मैं उससे सीखने के लिए तैयार हूँ। But unfortunately, these days, who are you to tell me? After all, what is your experience? Do you know who I am? That's the kind of language these days. लेकिन आजकल हम देखते हैं कि तुम मुझे सिखाने वाले कौन होते हो, तुम्हें क्या आता है, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा लोग कहकर आजकल बात करते हैं। We should be blessing the people. We should be encouraging the people. We should be building the people. We should be equipping the people. हम लोगों को प्रियो आशीषित करना है, उनका निर्माण करना है, उनको उन्नति करना है और उनको तैयार करते जाना है अपने वरदानों के द्वारा। So finally,
By doing so, God be glorified. और ये सारे वरदानों की सेवा हम करेंगे प्रियो, तो इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलेगी। If God is not glorified, what all we do, it's of no use. और अगर प्रियो जो भी हम कर रहे हैं वरदानों की सेवा, अगर उसे परमेश्वर को महिमा नहीं मिल रही है तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। Please remember, when people are blessed, then God is glorified. और एक बात याद रखना है प्रियो कि जब लोग आशीषित होंगे तो उससे परमेश्वर को महिमा मिलती है। When God is glorified, people are definitely be blessed, whether we know it or not. और जब हम परमेश्वर को महिमा देंगे तो जरूर लोगों को आशीष मिलेगी, भले हमें पता चले या ना चले। We have learned 7 points. और हमने अभी 7 विषयों को देखा है। Let us recap. आइए हम उसको थोड़ा दोहराएंगे। First, study God's word and know the spiritual gifts recorded in the scriptures. सबसे पहला है परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और उसमें किस प्रकार वरदानों के बारे में बताया गया है उसको जानना है। Secondly, observe others how they are exercising their spiritual gifts. और दूसरा है दूसरों को हम देखना है और ये भी जानना है कि वो कैसे वरदानों को इस्तेमाल करते हैं। And third, wait till God invites you. और तीसरा है कि हम परमेश्वर के द्वार खोलने का या उनके आमंत्रण करने तक का इंतजार करना है, प्रतीक्षा करना है। And fourthly, be willing to work hard the spiritual gift given to you. और जो चौथी बात है, जो भी हमें परमेश्वर ने आत्मिक वरदान दिया है उस वरदानों के ऊपर कड़ी मेहनत करना हमको पसंद होना चाहिए। And then do it skillfully and derive satisfaction. और पांचवी बात है कि जो वरदान हमको प्रभु दिया उसको बहुत कुशलता से करना है और ताकि हमारे अंदर में एक संतोषजनक विषय हमको मिल सके। You have to receive satisfaction. और सेवा करने के बाद वरदान की प्रयोग करने के बाद हमारे अंदर एक संतोष आना चाहिए। When your heart be filled with the peace, what a joy given to me, what a privilege given to me to serve the Lord. Your heart will be filled as if you gained the whole world. Maybe a little work you must have done, but still your heart will be filled with that joy because you have served the living God. और चूंकि हम इन वरदानों के द्वारा जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं प्रियो, इसलिए जब हम इसको बड़ी कुशलता से और संतोषजनक ढंग से करेंगे तो हमारे हृदय में एक बड़ी शांति आएगी, बहुत बड़ा आनंद आएगा और ये परमेश्वर की महिमा के लिए होगा। These 3 things are important. I receive satisfaction, others are blessed, God is glorified. और ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं कि मुझे संतोष मिलेगा, लोग आशीषित होंगे और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। When we don't prepare properly, we come back with lots of dissatisfaction. Oh, I lost opportunity. I could not deliver the goods properly. I could not do my job properly. And we ourselves will know, will be a lot of discouragement, doesn't matter. Sometimes it happens. But mostly, when your work is finished, you should have lots of satisfaction and lots of peace. Others be blessed, God be glorified. और हमारे जीवन में कभी-कभी ऐसा होता है प्रियो कि हम संतोष को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन हम मेहनत करनी हमें और हमें इस प्रकार मेहनत करना है कि परमेश्वर के वरदानों की सेवकाई से हमारे अंदर संतोष होना है, लोग आशीषित होना है और परमेश्वर को महिमा मिलना है। So another picture I have put before you to identify the gifts of the Spirit. God gives you burden in your heart, passion in your heart. और प्रियो ये जो एक चित्र आप देख रहे होंगे पवित्र आत्मा के उपहार को समझने के लिए, और इसको समझने के लिए हमारे अंदर एक बर्डन होना चाहिए, एक इच्छा होनी चाहिए। So with that burden, you pray more. With that burden, you pray more. और अगर हमारे अंदर वो बोझ होगा तो हम ज्यादा प्रार्थना कर पाएंगे। And you see the doors open. और जैसे ही हम प्रार्थना करेंगे तो हमारे लिए द्वार खुलेंगे। So as the doors open, you understand the external needs. और जैसे ही द्वार खुलेंगे तो हमको जरूरतें क्या है बाहरी वो समझ में आएगा। So whatever talent God has given, and unknowingly, you receive the training. और जैसे ही हमारे जीवन में हमको पता चलेगा प्रार्थना के द्वारा हमारे प्रतिभा का, तो उस टैलेंट के द्वारा हमारे अंदर में हमारा एक प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा।
as you receive, as you serve that spiritual gift, you'll have satisfaction, God is glorified, and others are blessed. और जैसे ही हम अपने प्रतिभा को और अपने वरदानों को इस्तेमाल करेंगे तो लोग जो है संतुष्ट होंगे और लोगों को आशीष मिलेगा, हम संतुष्ट हो जाएंगे और परमेश्वर को महिमा मिलेगी। Sometimes it may be gift by birth, और ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी कि ये जो उपहार है ये जन्म के साथ ही मिल जाए, and it's a talent or spiritualist, whatever the resource God has given you. Because you और have burden, you pray, God opens the doors, basing on the external needs. और प्रियो, चाहे ये हमको जन्म से मिला हुआ वरदान हो या हमें बाद में परमेश्वर एक टैलेंट के रूप में देते हैं, लेकिन ये सारी जो वरदान है ये हम प्रार्थना करते समय हमारे लिए अवसर खुलता है, और जब अवसर खुलते हैं तो हमें इन सारी बातों की जरूरत का पता चलता है। So you receive satisfaction, others are blessed, God is glorified. और इन वरदानों के द्वारा हम संतुष्ट होते हैं, लोगों को आशीष मिलती है और परमेश्वर को महिमा मिलती है। So Romans chapter 12 verse 3, everyone who is among you should not think to himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each man a measure of faith. रोमियो की किताब 12 अध्याय का 3, यहाँ लिखा है कि क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। So you should be able to have a proper understanding what gift God has given you, nothing more, nothing less. What, brother? Can you hear me? Anil Kare? और इसलिए परिमाण के अनुसार हमको सेवा। यस अंकल। Yeah. Can you hear me? यस अंकल। Yeah. आई थिंक नेटवर्क इशू अंकल जी। Yeah. Okay. Go ahead. तो जैसा हम I think your speech is परिमाण के not clear. अनुसार जो भी वरदान मिला है वो ज्यादा समझना है। Okay. Do not ahead. abuse Hello? spiritual gifts. Do not abuse spiritual gifts. Okay. Now voice is clear अंकल? Yeah. Do not abuse spiritual gifts. और हम अपने आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। How do you abuse spiritual gifts? और हम कैसे जानेंगे कि हम अपने आत्मिक वरदानों को दुरुपयोग कर रहे हैं? By not using given spiritual gifts. If you don't use the spiritual gift God has given you, you are abusing it. और अगर परमेश्वर के दिए गए आत्मिक वरदानों का हम उपयोग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है I think your network bandwidth is low. Hello? Your network bandwidth is low. We are getting some lagging. Let me repeat. If you do not use the spiritual gift which is given to you, you are abusing it. और प्रियो, अगर हम अपने दिए गए आत्मिक वरदानों का उपयोग नहीं करते हैं तो वास्तव में हम उसे दुरुपयोग करते हैं। And secondly, by using spiritual gifts which are not given to you. और आत्मिक वरदानों का दुरुपयोग का दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपको आत्मिक वरदान नहीं मिला गया है उसको हम उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक दुरुपयोग है। Please two things, please remember. Use what is given, but don't use what is not given. और दो बातें हम समझनी है कि जो वरदान दिया गया है उसको उपयोग करना है और जो वरदान नहीं दिया गया है उसको उपयोग नहीं करना है। But by using what is not given to you, that is also abusing the spiritual gift. और जो वरदान हमें नहीं मिला है अगर हम उसको उपयोग करने की कोशिश करेंगे तो ये आत्मिक उपहारों का दुरुपयोग हो जाएगा। People may ask you, but you should be honest to say that, brother, that is not my job. I'm sorry, I will not do it.
और बिल्कुल हमें स्पष्ट रीति से बोलना है कि ये मेरा काम नहीं है, ये मेरे को इस प्रकार का वरदान नहीं है। Hope you understand the session very clear. और आशा करता हूँ कि आज की इस सेशन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करें।